ও তো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। দেখো, তো এবার কি হয়েছে, किसी भाषा में আমি তারপর থেকে শুরু করছি, দেখো সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। तो किसी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के निश्चित क्रम वाले समूह, নিশ্চিত ক্রম वाले যে সমূহ, ওটাকে কি বলা হচ্ছে, ওটাকে বর্ণমালা বলা হয়, বর্ণমালা कहा जाता है। तो किसी भाषा में মানে যে কোনো ভাষায় প্রযুক্ত হওয়া, প্রযুক্ত হয়ে থাকা যে বর্ণ, সেই বর্ণের যে নিশ্চিত ক্রমটা, সেই নিশ্চিত ক্রম যে সমূহটা, তাকে বলা হয় বর্ণমালা। तो वर्णमाला कहा जाता है। तो ऐसे करते हैं। ऊपर लिखे वर्णों का समूह ही, ऊपर लिखे वर्णों का মানে উপরে লিখা যে বর্ণ, তার যে সমূহ, हिंदी की वर्णमाला है। तो ऊपर लिखे वर्णों का समूह ही हिंदी की वर्णमाला है। তাহলে উপরে লিখে থাকা বর্ণের যে সমূহ, সেটাকে হিন্দির বর্ণমালা বলা হয়। तो हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, মানে হিন্দি বর্ণমালায় দুই প্রকারের বর্ণ হয়ে থাকে। ওকে, এবারে সেটা কি কি, এক স্বর, দুই হচ্ছে ব্যঞ্জন। এক হচ্ছে স্বর, দুই হচ্ছে ব্যঞ্জন, তো হয়ে গেল। स्वरটা কি, स्वरটা হচ্ছে जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, মানে যে সমস্ত বর্ণের উচ্চারণটা স্বতন্ত্র রূপে করা হয়ে থাকে, ये वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या 11 है। ध्यान रहे कि ये स्वर तीन प्रकार के हैं, মানে যেই বর্ণ উচ্চারণ স্বতন্ত্র রূপে করা হয়ে থাকে তাকেই স্বর বলা হয়। হিন্দিতে স্বরবর্ণের সংখ্যা মোট 11। যদি ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখা যায়, তাহলে স্বরবর্ণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। স্বরকে কিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, এক হচ্ছে হ্রস্ব, দুই হচ্ছে দীর্ঘ, তিন হচ্ছে প্লুত। এইভাবে করতে হবে বিষয়টাকে। तो रस्व स्वर की तरफ अगर हम लोग देखें, तो रस्व स्वर हम किसको कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, हसी, हसूरी, ये चारा ह्रस्व स्वर है। तो इसको ऐसे कह देंगे। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, মানে যে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করবার সময় কম সময় লাগে, তাদেরকে হস্যস্বর বলা হয়। ঠিক আছে, তাদেরকে হস্যস্বর বলা হয়। तो आ, हस्से, हस्सो, री। तो ये जो अ, हस्सी, हस्सो, री, ये चारों ह्रस्व स्वर, इनको हम इन चारों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दोगुना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, ও, ये 7 দীর্ঘ স্বর। তাহলে কি বোঝা গেল, যেই সমস্ত স্বরের উচ্চারণ করতে হ্রস্ব স্বরের থেকে দ্বিগুণ সময় লাগে, তাকে দীর্ঘস্বর বলা হয় থাকে। যেমন আ, दीर्घ, दीर्घ, ए, ऐ, ओ, ये जो 7 दीर्घ स्वर है, ठीक है, ऐसे होगा। अब अगर हम प्लुत स्वर की तरफ देखें, तो प्लुत स्वर हम किसको कहेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे अयूम, हेर, आयम। মানে যেই স্বরবর্ণের উচ্চারণে হর্ষ স্বরের থেকে প্রায় 3 গুণ সময় বেশি লাগে, তাকে বলা হচ্ছে প্লুতস্বর। ঠিক আছে, ये प्लुतस्वर कहलाते हैं। जैसे কিরকম উদাহরণ দিতে পারি আমরা ওখানে, ওম, হে রাম, এরকম ভাবে উচ্চারণটা, এগুলো এর আমরা উদাহরণ দিতে পারি হবে। এবারে যেটা বিষয় আসছে, স্বরোं की মাত্রায়। এবার এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধুমাত্র স্বরবর্ণ জানলেই তো হলো না, স্বরবর্ণের সাথে যে মাত্রাগুলো যুক্ত হয়, সেই মাত্রাগুলো কিভাবে যুক্ত হয়, এবারে আমরা সেই বিষয়গুলোর দিকে দেখব। स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, মানে স্বরের যে প্রয়োগটা, সেটা দু রকম ভাবে হয়ে থাকে। কিরকম, नंबर 1 में हम बोल रहे हैं कि उनके मूल रूप में, যদি এর মূল রূপটাকে দেখা যায়, তাহলে কি হয়, जैसे आए, आओ, মানে এই যে आए, हम बोल रहे हैं कि आए, ये सब कुछ हम लोग बोल रहे हैं, तो आए और आओ, इन दोनों में थोड़ा, इन दोनों को तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके मूल रूप में, এদের যদি মূল ও রূপটার দিকে তাকানো যায়, তাহলে কিন্তু এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দেওয়া যাবে। যেভাবে आए और आओ, आए और आए, आओ, इन दोनों
इन दोनों चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, उनके मूल रूप में आए या आओ। ठीक है, तो गलत। अब व्यंजन के साथ मिलाकर ব্যঞ্জনের সাথে মিলিয়ে দিয়ে ব্যঞ্জনের সাথে একসাথে করে বিষয়টা করতে হবে। तो व्यंजन के साथ मिलाकर अगर हम बोले जैसे कि का 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 आ का का ई की, तो ऐसे करके हमको बोलना है। ठीक है, ऐसे करके हम बोलेंगे, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे करके हमको बोलना है बस। व्यंजन में जब तक स्वर नहीं मिला होता है, ব্যঞ্জন বর্ণে যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বরকে পাওয়া যায় तब तक उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है, ततক্ষণ পর্যন্ত তার নিচে हलंत चिन्ह লাগানো থাকে। तो व्यंजन के साथ मिला स्वरों का बदला रूप ही ব্যঞ্জনের সাথে লেগে থাকা স্বরের এই যে বদলে যাওয়া রূপটা, তাকেই বলা হয় মাত্রা। आइए मात्रा के रूप उदाहरण देखें। আসুন মাত্রাদের যে রূপটা বা উদাহরণটা আছে সেই उदाहरणটা আমরা देखी। तो কিরকম সেটা? অ, कोई मात्रा नहीं होती। तो कोई मात्रा नहीं होती मैंने अ এর কোন রকম मात्रा है ना। जैसे कि घर सड़क हम बोल रहे हैं, घर सड़क, हम बोल रहे हैं घर सड़क। ठीक है, आ आकार को दिखना जिस तरीके से हम लोगों ने दिखाया है इस पुस्तक में, जैसे दिखाया है उस तरीके से आपको दिखना है, और उसको उनके बाद जो शब्द होगा जैसे कि बाघ होगा, राग होगा, ऐसा होगा। अगर छोटी इकार की बात करें, इकार से जो होगा क्या होगा? किसान होगा, चिड़िया होगा। दीर्घी की बात की जाए तो दीर्घी से होगा कीमत, चीनी। हसूकार की बात की जाए तो होगा गुलाब और पुलाव। अगर दीर्घुकार की बात की जाए तो होगा फूल और धूल। रिकार की बात की जाए तो रिकार से होगा मृग और पृथ्वी। एकार की बात की जाए तो होगा रेल, खेल। ऐकार की बात की जाए तो होगा पैसा, कैसा। अगर ओकार की बात की जाए तो होगा बोल, ढोल। और ओ की बात की जाए तो होगा मौसम और पौधा। तो इस तरीके का होगा। अब हमको ये भी पहचानना है कि अनुस्वार, ये अनुस्वार क्या होता है? औ के माथे के ऊपर जो एक बिंदी की तरह होता है अंग, अंग वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। অং যে বর্ণটা, সেই বর্ণটাও স্বরবর্ণের পরেই হয়ে থাকে। ঠিক আছে, इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, এর যে উচ্চারণটা সেটা নাক থেকে করা হয়ে থাকে। तो इसका उच्चारण जिस वर्णों के बाद होता है, এই উচ্চারণটা যে বর্ণের পরে হয়, उससे वर्ण की सिर पर, उससे মানে ওর যে বর্ণর মাথার উপরে একটা ছোট টিপের মধ্যে बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि रंग, जंगल, संग, तिरंगा, এরকম ভাবে বিষয়টা হয়ে থাকে। अब अनुनासिक की बात की जाए तो अंग जैसे अनुस्वार के समान ही अनुनासिक चंद्रबिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। মানে অনুস্বারের মতোই বা সমানই अनुनासिक বা চন্দ্রবিন্দুর যে প্রয়োগটা সেটা করা হয়। হলো, अंतर केवल समय का होता है, মানে অন্তরটা শুধুমাত্র সময়ের হয়ে থাকে। इसके बोलने में कम समय लगता है, মানে এটা বলতে कम समय लगे, और इसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। মানে এর উচ্চারণের সময় কি হয়, নাক আর মুখ দুটো দিয়েই কি হয়, हवाটা বেরিয়ে যায়। जैसे क्या होता है हंस, हंस होता है अनुस्वार, अनुस्वार और हंस होता है अनुनासिक। तो अनुस्वार में एक तरीके का होता है, अनुनासिक में एक तरीके का होता है। अगर हम विसर्ग की तरफ देखें, आहा वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। तो आहा जो विसर्ग करছি, इस विसर्ग बोलने के बाद भी इसका जो उच्चारण होता है और स्वरेर जे स्वरेर उच्चारण पड़ी है, तो इसका उच्चारण हा अनुस्वार व्यंजन की तरह ही किया गया है। तो व्याकरण में इसे विसर्ग कहते हैं। যদি উদাহরণ দেওয়া যায় তাহলে উদাহরণের জন্য বলি প্রাতঃ, পরবলা তা বিসর্গ, আতঃ আতা বিসর্গ আদি। তো এই মতো বিষয়টাকে বলা হয়ে থাকে। এবার যদি আমরা মানে ব্যঞ্জন বর্ণের কথা বলি, तो व्यंजन वर्णটা কি? जिस वर्णों का उच्चारण
जिस वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी कुल संख्या 33 है। যেই বর্ণের উচ্চারণ স্বরবর্ণের সহায়তায় করা হয় তাকেই ব্যঞ্জন বলা হয় থাকে। হিন্দি বর্ণমালায় ইনকি কুল সংখ্যা 33 है। তার মানে হচ্ছে যেই বর্ণের উচ্চারণ স্বরবর্ণের সহায়তায় উচ্চারণ করা হয় তাকে ব্যঞ্জন বলা হয়। তো হিন্দি বর্ণমালায় স্বরবর্ণের সংখ্যা 33টা হয়ে থাকে, व्यंजन वर्णের সংখ্যাটা 33 হয়ে থাকে, ঠিক আছে। तो इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्ण भी প্রয়োগ किया जाता है। মানে এই বর্ণগুলোর প্রয়োগ ছাড়াও সেখানে আরো কিছু সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ প্রয়োগ হয়, যেমন কায়া ফোলা, বর্গের চিহ্ন, তালবস্বর ফোলা, এই জাতীয় বিষয়গুলো। এবার এই যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ চারটে, এই সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থেকে অনেক সময় প্রশ্ন আসে সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ কোনগুলো। হিন্দির ক্ষেত্রে চারটে: ক্ষয় মধ্যস্য, তারা ফলা, বর্গের চিহ্ন, তালবস্বর ফলা। এই ক্ষয় মধ্যস্য কিভাবে হচ্ছে? কা, সা আর আ। তারা ফলা কি করে হচ্ছে? তা, রা, আ। বর্গের চিহ্ন কি করে হচ্ছে? বর্গের চিহ্ন আ। আর তালবস্বর ফলা কি করে হচ্ছে? তালবস্বর রা। তো এই হচ্ছে संयुक्त व्यंजन, এই চারটি আছে যদিও। तो यह संयुक्त व्यंजन जो বিষয়টা, তো संयुक्त व्यंजन का संयोग दो प्रकार से होता है। সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যে সংযোগটা হচ্ছে সেই সংযুক্ত হচ্ছে দুটো প্রকারের মাধ্যমে। কি সেই দুটো প্রকার? এক সমান বর্ণों का संयोग, মানে সমান বর্ণের যে সংযোগ সে বিষয়টা কিরকম হচ্ছে? চাই চা দিয়ে হচ্ছে বাচ্চা, তয়তা দিয়ে হচ্ছে पत्ता, अब काय काय दिए थे पक्का। तो इस तरीके का होता है। असमान वर्ण का संयोग यदि असमान वर्णের সংযোগের কথা বলি তাহলে সেই যেমন দায়ধা দিয়ে शुद्ध, कायता দিয়ে वक्त, बाह्यवरा দিয়ে व्यक्ति। तो संयुक्त वर्णों का शब्द में प्रयोग, মানে সংযুক্ত বর্ণের মানে যে শব্দের প্রয়োগ সেটা কিরকম হচ্ছে দেখো। সমান বর্ণों का संयोग, সমান বর্ণের সংযোগে কিরকম হচ্ছে? চয় চয় দিয়ে শব্দ যদি করি কচ্চা সচ্চা, টয়টা দিয়ে লাট্টু ভুট্টা, বর্গ দিয়ে ছজ্জা সজ্জা, ডায়টা দিয়ে ঝাড্ডা, এবার এবার তয়টা দিয়ে पत्ता और छत्ता, दयदा दिए रद्दी गद्दी, काय दिए पक्का छक्का, मैं दिए चम्मच सम्मान। तो इस तरीके का कुछ जो वर्ण होता है इस वर्णों से कुछ शब्द बनाए गए हैं। इस शब्दों को मैंने आपके सामने बोला। तो असमान वर्णों का संयोग, ये तो समान वर्णों का संयोग गया। अभी आपको बोलना बाकी कि असमान वर्णों का संयोग कैसे होता है। देखो समान वर्णों का संयोग हो गया तो मतलब हो गया कि खत्म हो गया, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। समान वर्णों का भी जब संयोग होता है ऐसे ही असमान वर्णों का जो असमान वर्ण होते हैं उसका भी संयोग होता है। कैसे होता है? अगर दय धय से चला जाए तो इसका क्या होगा? वृद्ध्य समृद्ध। दैवा का देखा जाए तो होगा द्वार द्वार। तत्सत्ता का देखा जाए तो होगा स्थान स्थल। दय धय इसकी तरफ देखा जाए तो वृद्ध्य अवृद्ध्य। এবার ऐसे हो गया ऐसे हो गए तो तद वृद्धि समृद्धि हो गए। तत्सर्थ है स्थान स्थल हो गया। तय वय गुरुत्व मातृत्व हो गया। तदंत वस्तु नमस्ते हो गया। दंतने जब धन्य और कन्ना हो गया। कैखा मक्खी और मक्खन हो गया। कैला सकला सकला सकल और सकल प्राप्त प्राप्त सप्ताह। दैव दिए হচ্ছে द्वारा द्वार, আর দায়জা ফলা দিয়ে বিদ্যা আর গদ্যা, আর পয়জা ফলা দিয়ে পিয়ারা পিয়াস, আর পয়জা ফলা দিয়ে ব্যয় ব্যাপার, আর বর্গজা বাই দিয়ে জোয়ার জ্বালা, খাইজা ফলা আকার দিয়ে ব্যাখ্যা, খাইজা ফলা আকার দিয়ে সংখ্যা খ্যাতি, বর্গজা তো জোয়ার জ্বালা বললাম। বর্গজা ফলা দিয়ে রাজ্য युति, আর মধ্যে সেটা হচ্ছে কষ্ট স্পষ্ট। तो ये कुछ असमान वर्णों का संयोग था। अब जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है रॉ के विभिन्न प्रयोग। ये जो रॉ होता है हर एक रॉ, लेकिन इस रॉ का एक प्रयोग होता है। इस रॉ का प्रयोग बहुत अलग तरीके का होता है।
अब रॉ का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, ये मन में बहुत बड़ी सवाल होता है कि रॉ का प्रयोग भाई कैसे किया जाए। तो इस रॉ का प्रयोग करने का एक अलग तरीका होता है, जो अलग तरीका कैसे होता है हम इस पर देखेंगे। देखो, विभिन्न रॉ व्यंजन के विभिन्न प्रयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए निम्नलिखित बातों को समझना आवश्यक है। মানে রয়ে যে যে বিভিন্ন প্রয়োগ হয় সেই বিষয়টাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত যে সমস্ত বাক্যগুলি বলা হয়েছে সেই বিষয়গুলোর দিকে একটু গুরুত্ব দিতে হবে। নাম্বার ওয়ানের দিকে যদি আমি দেখি, সেখানে বলা হচ্ছে রা अक्सर की ध्वनि यदि दूसरे से पहले आती है, র অক্ষরের ধ্বনি যদি দ্বিতীয় কারোর আগে আসে, दूसरे व्यंजन से पहले आती है, द्वितीय जो वर्ण से व्यंजन वर्ण यदि पूर्वे आसे, तो उसे उसी की शीर्ष पर মানে তাকে তার শীর্ষতে মানে মাথার উপরে শীর্ষ पर लगाया जाता है, মানে তাকে একদম তার মাথার উপরে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, तो जैसे का रा मा, ऐसा हो गया कि का रा मा, ऐसा लिखा गया कि का रा मा, काहंत काहलंत काहलंत राहलंत मा, ऐसा हुआ कुछ। तो इसका जब प्रयोग होगा, जब इसको हम लोग शब्द में प्रयोग करेंगे, उसको हमको लिखना है कर्मा, काम है कर्मा। तो इस तरीके का हमको लिखना है। तो इस शब्द में क्या हो रहा है, इस शब्द में रॉ का उच्चारण म व्यंजन से पहले आ रहा है। तो ऐसे ही हुआ है, तो इस शब्द में रॉ का जो उच्चारण है, तो उसका रॉ का जो उच्चारण है म व्यंजन से पहले आया है कि नहीं, तो आया ना। तो रॉ का जो उच्चारण है वो म व्यंजन से पहले आया है, अतः इसे म व्यंजन के মানে যেহেতু এটা এই র এর উচ্চারণের পূর্বে এসেছে, অতএব এটাকে প্রথমেই রাখা হবে। তো अतः इसे म व्यंजन के शीर्ष पर लगाया गया है। এই কারণেই র ব্যঞ্জনের মাথার উপরে মটাকে লাগানো হয়েছে। এটা একটা কনসেপ্ট। একটা अन्य उदाहरण, अगर इसके बारे में थोड़ा और अलग तरीके का उदाहरण अगर हम लोग दिखाएंगे आपको, तो क्या रहेगा, गरम, सरम, पर्वत, बर्फ आदि। तो इस तरीके का बहुत तरीके का इसका उदाहरण हम आपके सामने रख सकते हैं। वैसे तो ऐसा होगा, गरम, सरम, पर्वत, बर्फ आदि, ऐसे इस तरीके का होगा। अगर सरल शब्द में कहे, যদি সরল শব্দতেই বলি যে এগুলো এরকম 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 হবে বিষয়টা, तो सरल शब्द में कहे तो बोलते समय आधा रा जहां उच्चारित होता है, ये उससे अगले वर्ण के सिर पर सौंप के फन की तरह लगा दिया जाता है। মানে সরল শব্দ হিসেবে যদি আমরা বলি, सरल শব্দ में कहे মানে সরল শব্দতে যদি বলা হয়, তো বলতে সময় বলবার সময় অর্ধেক যে রয়ের যে উচ্চারণটা হয়, ये उससे अगले वर्ण মানে এর যে আগের যে বর্ণটা, তার মাথার উপরে সাপের মতো ফনা তুলে, সাপ কি ফান কি তারা মানে সাপের মতো ফনা তুলে দিয়ে বসে থাকে। দেখো, যদি এরকম যদি কর্ম লেখাটা দেখো বা বাকি যে সমস্ত উদাহরণগুলোর দিকে যদি তুমি তাকাও, গরম, সরম, পার্বত, বরফ, তাহলে যেরকম এখানে যে তুলনাটা করা হয়েছে সাপের ফনা দেওয়ার মতো, সাপের ফনা তুলে বসে থাকার মতো, একদম একদম পারফেক্ট উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ঠিক সাপের ফনা তুলে বসে থাকার মতোই কিন্তু সে বসে আছে। ठीक है। दूसरे पर जो है, यदि रा अक्षर का ध्वनि पूर्ण रूप से आती है, যদি রয়ের যে অক্ষরের ধ্বনি সেটা যদি পূর্ণরূপে বলা হয়, ঠিক আছে, র যে উচ্চারণটা আছে না, রয়ের যদি পূর্ণরূপে বলা হয়, তাহলে কিন্তু তার ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। তো র কি অক্ষর की ध्वनि, र की अक्षर की ध्वनि अगर पूर्ण रूप से आती है, तो र अक्षर की ध्वनि पूर्ण रूप से आती है, যদি রয়ের যে উচ্চারণটা সেটা যদি পূর্ণ রূপে বলা হয়, তাহলে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবে হবে। ঠিক আছে, তাই এবার সেক্ষেত্রে কি হবে, তো এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তো রা কে অক্ষর की ध्वनि, রয়ের যে অক্ষরের যে ধ্বনি সেটা যদি প্রয়োগ করা হয়, তো পূর্ণ रूप से आती है,
তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা পূর্ণরূপেই আসবে, একদম সম্পূর্ণ যে রূপ সেই রূপেই এর প্রয়োগ হবে এবং সেই রূপেই এটার प्रयोग হবে এবং সেই রূপে এটা ব্যবহার হবে। तो इस तरीके का होगा। तो वो बस उस अक्षर के पेट में लगा जाती है। সেক্ষেত্রে ওটা কি হয়, ওই অক্ষরে কি হয়, পেটেতে লাগিয়ে দেওয়া হয়, মানে যেন যেন তার মনে হয় যেন এটার অবস্থানে যেন তার পেটেতে আছে। ঠিক আছে, এরকম ভাবে বিষয়টা হয়ে থাকে। তো অন্যভাবে আর কিছু নয়, কিন্তু এটা যেন তার पेटेতে লাগানো হয়েছে এরকম ভাবে বিষয়টা তখন দেখি। तो हो गया। तो इस तरीके का होगा। अब देखो जैसे, अब जैसे पे क्या बोला जाए, इसका उदाहरण हम आपको दिखाने की या इसके उदाहरण के बारे में हम आपको समझने की कोशिश करवा रहे हैं। जैसे जैसे पा रा सा दा, तो पा रा सा दा, इससे क्या हो रहा है, प्रसाद, परबला दंतस्या का दा, तो प्रसाद हो रहा है। तो इसमें र व्यंजन का उच्चारण माने एते र व्यंजन जो उच्चारण था, इस पे र व्यंजन का जो उच्चारण মানে র ব্যঞ্জনের যে উচ্চারণটা এখানে হবে যেটা দেওয়া হয়েছে, তো इसमें र व्यंजन का जो उच्चारण है, इसमें र व्यंजन का उच्चारण प वर्ण के बाद पूर्ण रूप से है। মানে এখানে যে র ব্যঞ্জনের যে উচ্চারণটা সেটা প বর্ণের পরেই পূর্ণ রূপে উচ্চারণ হয়েছে বা এসেছে, अतः ये प के पेट में लग गई है। অনন্ত এটা বলা যায় এটা প এর পেটের দিকে লেগে গেছে। तो तो पेट में लग गई। अब प का उच्चारण, प এর যে উচ্চারণটা সেটা প এর अफला के रूप में किया जा सकता है, या प এর যে উচ্চারণটা সেটা প এর अफला রূপে উচ্চারণ করা যেতে পারে। अगर अन्य उदाहरण की तरफ देखें तो अन्य उदाहरण যদি দেওয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হবে গ্রাম, ক্রাম, প্রসন্ন, भैया आदि এরকম উদাহরণ দিয়ে দিতে পারি। तो इसके अतिरिक्त बिना खड़ी पाई बोली व्यंजनों ट ड के साथ प्रयोग होने पर उनके साथ नीचे उल्टे बी की साथ रूप में लगता है। तो अगर इसके अतिरिक्त মানে এর যদি অতিরিক্ত কখনো বিনা, কখনো সাধারণত যদি দাঁড়িয়ে থাকে, ধরো এরকম মনে হয় যে এমনি এমনি রয়েছে, তো इसके अतिरिक्त বিনা খাড়ি বাড়ি, মানে এর অতিরিক্ত যদি বিনা খাড়ি মানে এরকম এমনি দাঁড়িয়ে আছে এরকম যদি কখনো মনে হয়, তো বিনা খাড়ি বাই বলে ব্যঞ্জন, মানে এরা এমনি দাঁড়িয়ে আছে এরকম দাঁড়িয়ে থাকা ব্যঞ্জনের মতো, ধরো টা ডা का के साथ प्रयोग होने पर এর প্রয়োগ হওয়াতে যে র ইনকে নিচে, র কি হয় এর নিচে उल्टो बी যেরকम है वैसे उल्टे बी এর মতো उल्टे बी के रूप में लगता है, जैसे जबा। और जैसे कैसे उदाहरण हो रहा है कि ट्रक हो रहा है, ट्रक हो रहा है, टेराफला का ट्रक हो रहा है, डाराफला में डम हो रहा है, ऐसे आदि बहुत तरीके का उदाहरण ऐसे होगा बस इधर यहाँ पर। अब ये तो गया रॉ का विभिन्न प्रयोग। रॉ का भिन्न प्रयोग हमको इसलिए जानना है क्योंकि रॉ का अगर भिन्न प्रयोग हमको हमारे समझ में नहीं आएगा तो हम इसका प्रयोग, इसका जो प्रयोग होगा तो इसका प्रयोग हम ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे। रॉ का जब प्रयोग, तो रॉ का प्रयोग तो बहुत तरीके से हो रहा है, इसका प्रयोग हम ठीक तरीके से कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसका का हमको जानना बहुत महत्वपूर्ण है इसे। तो अब अगर हम थोड़ा ध्यान दे दें तो इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा ध्यान दे दें तो अब हमको क्या देखना है कि वर्ण विच्छेद देखना है। अब वर्ण विच्छेद की तरफ अगर हम थोड़ा देखें, विच्छेद का अर्थ क्या है, अलग करना। বিচ্ছেদের যে অর্থটা কি হয়, अलग करना, মানে বিচ্ছেদের অর্থটাই হচ্ছে अलग करना, মানে ডিভাইড করা, ধরো আলাদা করে দেওয়া। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार शब्द के प्रत्येक वर्णों को এইভাবে শব্দের প্রত্যেক বর্ণকে আলাদা আলাদা করে तो वर्ण विच्छेद, तो इस विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, विच्छेद का अर्थ है आलादा करना। तो इस प्रकार शब्द के प्रत्येक वर्णों শব্দের প্রত্যেক বর্ণকে, শব্দের যে আলাদা আলাদা সমস্ত যে বর্ণগুলো আছে সেগুলোকে আলাদা করে লেখা হয় এবং এটাকে বলা হয় বর্ণ বিচ্ছেদ। तो वर्ण विच्छेद कहलाता है, এটাকে বর্ণ বিচ্ছেদ বলা হয়। जैसे कि
अगर वर्ण विच्छेद हम बचपन से कर रहे थे, इसलिए हमको ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर बोले हम हम बोले तो हमको अगर हम विभाजित करेंगे तो होगा हा, आ, मा, आ। अगर हम सबको करेंगे सा, आ, वा। छात्र का करेंगे छ, आ, ता, रा, आ। क्योंकि छात्र का स्पेलिंग जो होता है छ का तरफला होता है, ऐसा होता है। अब लड़की को देखे ला डैश कर देगी लड़की, तो इसका होगा ला, ला, आ, वा, ला, आ, वा। इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके का होगा ला, आ, वा, आ, का, ई। तो इस तरीके का होगा लड़की, ठीक है। तो लड़की का वर्ण विच्छेद इस तरीके का हो गया। अब अगर हम देखें, हमको देखना है हमने सीखा। अब इस तरीके का जो पुस्तक होता है, इस तरीके का पुस्तक में हमने सीखा देने का जो मतलब रहता है, बच्चे लोग जो पढ़ते हैं वो बच्चे लोग पढ़ने के बाद या फिर जिनको हम सिखाए या जिनको नए नए सिखाने का जरूरत होता है, जिसका नए नए सिखाने की जरूरत है, जैसे कि आप अभी सीख रहे हो, आपको सिखाने के बाद जो चीज के बारे में हमने बताया आपको, ठीक है, पढ़ना विचार, तो ये अध्याय को फिर से एक बार निचोड़ के মানে সমস্ত বিষয়টাকে আবার পুনরায় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হবে हमने सिखाया। तो की শিখেছি আমরা এখানে? বর্ণ उस ধ্বনি को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। মানে বর্ণ আমরা সেই ধ্বনিটাকেই বলি যাকে আর ভাঙা যায় না কোনোভাবেই। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं। মানে কোনো ভাষায় প্রযুক্ত হয়ে থাকা বর্ণের যে সমূহ, মানে একত্রে ধরো অনেক সাথে অনেকগুলো বর্ণ আছে, সেক্ষেত্রে তখন তাকে আমরা বর্ণমালা বলে থাকি। বর্ণ के मुख्य दो भेद है, স্বর আর ব্যঞ্জন। দেখো বর্ণর তো দুটো দুটো ভেদ আছে মূলত, একটা হচ্ছে স্বর আর দুইটা হচ্ছে, দুই নম্বর হচ্ছে ব্যঞ্জন। तो এই বিষয়টা দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। अब अगर हम देखें अच्छी तरह से तो क्या बोल रहे हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो स्वर कहलाते हैं। ताकि स्वर बोला है। स्वर के तीन प्रकार होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुतो। स्वर तीन प्रकार है, ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुतो। अब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है, মানে যেই স্বরের উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে তাকে ह्रस्व स्वर বলা হয়ে থাকে। अब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, যেই স্বরের উচ্চারণ করতে নত স্বরের থেকে দুগুণ সময় লাগে তাকে দীর্ঘস্বর বলা হয় থাকে। अब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है उसको प्लुतो स्वर कहते हैं। এই শব্দের উচ্চারণ করতে গেলে ধরো সেক্ষেত্রে একটা কি বলবো, হস্তস্বরের থেকে 3 गुण समय বেশি লাগে। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, 3 गुण বেশি সময় লাগে, তাকে সেটাকে বলা হচ্ছে প্লুত স্বর, ঠিক আছে। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया गया है, जिन যে বর্ণের উচ্চারণ করতে স্বরবর্ণের সাহায্য লাগে তাকে আমরা কি বলি, ব্যঞ্জন বর্ণ বলি। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं, তাকে ব্যঞ্জন বলা হয়। तो हिंदी भाषा के संयुक्त व्यंजन, এবার হিন্দি ভাষায় যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন চারটে আমরা পেয়েছি, মধ্যস্থ, তৈরফলা, বর্গজনীয় এবং তালব্যস্বরফলা। এই জায়গাটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। তো এই চারটে আমরা পাবো। তো এবার এই চারটে ধরো পেলাম, তো इट्स ओके। এবার যেটা দেখার, संयुक्त व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो प्रकार হয়ে থাকে। তো संयुक्त व्यंजन বর্ণ দু প্রকারের কিরকম হচ্ছে, সে দু প্রকারের কিরকম দেখো বিষয়টা। আর সমান বর্ণকে মেল সেভেন, সমান বর্ণের মিলনের ফলে হয়ে থাকে। जैसे कि न न, दद्र दद्र, न अन्ना। असमान वर्णों के मेल से बने ধরো असमान বর্ণের মিলনের ফলে হচ্ছে তা ইয়া, তা ইয়া হলো সত্য, এরকম হলো। र व्यंजन के प्रयोग पर
র ব্যঞ্জনের প্রয়োগের ফলে র ব্যঞ্জনকে প্রয়োগ করে বিশেষ স্থান দেনা होता है র বর্ণের প্রয়োগের ফলে সেখানে সেই বিষয়টার উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয় तो इसका प्रयोग कई प्रकार से होता है एर प्रयोग তো কি होता है যে সমান বর্ণকে মেল से बने মানে সমান বর্ণের যখন মিলনের ফলে তৈরি হচ্ছে যেমন ধরো দন্ত্য ন দন্ত্য ন সমান বর্ণের মিলনের ফলে তৈরি হবে ইন্টারেস্টিং ধরো দুটো পাশাপাশি দুটো একই বর্ণ ধরো দন্ত্য ন দুটো সমান বর্ণ তো এই দন্ত্য ন দিয়ে তৈরি হবে কি দন্ত্য ন तो ये जो हो रहा है ये समान वर्ण वाले मेल से बने असमान वर्ण के मेल से बने ধরো অসমান বর্ণের মিলনের ফলে যেটা তৈরি হচ্ছে ধরো তয়ের সাথে জফলা তয়ের সাথে জফলা করলে কি হচ্ছে তয় জফলা सत्य अब र व्यंजन के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना होता है र व्यंजन प्रयोगের সময় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় इसका प्रयोग कई प्रकार से होता है মানে এর প্রয়োগ কয়েক রকম প্রকার হয়ে থাকে এবারে শব্দকে প্রত্যেক বর্ণ को शब्देर प्रत्येक प्रत्येक वर्णों के शब्दों के प्रत्येक वर्णों को अलग अलग करके शब्दों के प्रत्येक वर्णों को अलग अलग करना शब्दों को प्रत्येक वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाते हैं শব্দের প্রতিটা বর্ণের যে আলাদা করে বলা তাকে বলা হচ্ছে বর্ণ বিচ্ছেদ जैसे कमल जैसे हम लिख रहे हैं तो अगर कमल के बारे में हम लोग देखें तो इसका क्या होगा का आ मा आ ला ऐसे होगा का आ मा ला इस तरीके का कुछ होगा ठीक है तो इसमें इसमें और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये का आ मा आ ला आ ऐसे ही कंफर्टेबल होगा ठीक है तो ऐसे करके हमको वर्ण विच्छेद करना है काल ठीक है चलो फिर एक्सरसाइज अनुशीलनी जे इसका जो एक अनुशीलनी होता है हर एक अध्याय का एक अनुशीलनी होता है और जिसके अंदर कुछ प्रश्न वगैरह होता है तो इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे क्योंकि आप लोगों को बता देने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर इसे हमको कभी लिखना भी होगा तो हमको किस तरीके का चीज लिखना पड़ेगा तो इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है तब देख लीजिए क्या होगा देखिए वर्ण से आप क्या समझते हैं तो वर्ण से आप क्या समझते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ण से आप क्या समझते हैं तो इसके बारे में आपको जो बताना है वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते बस इतना ही बता दीजिए वर्ण से आप क्या समझते हैं इसका पता चल जाएगा जो सुन रहे हैं वर्णमाला से वर्णमाला से क्या तात्पर्य है वर्णमाला से क्या तात्पर्य जैसे इसको भी अगर हम ऐसे लिख दे कि किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूहों को वर्णमाला कहते हैं इस तरीके के हम बोल सकते हैं वर्णमाला कैसे बोल सकते हैं अगर हम बोल रहे हैं कि स्वर और व्यंजन की परिभाषा दीजिए तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा दीजिए पर स्वर और व्यंजन का क्या वाले सेटअप होता है सर किसे कहते हैं अगर हम पूछेंगे तो क्या होगा इसका उत्तर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वो स्वर कहलाता है और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाता है ठीक है तो इस तरीके का होगा तो स्वर और व्यंजन की परिभाषा दीजिए इस तरीके का आपको करना पड़ेगा उसके बाद कभी कभार सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाए यानी कि चूज द करेक्ट आंसर ऐसे भी आ जाता है परीक्षा में जैसे कि अगर आपके सामने परीक्षा में प्रश्न है वर्ण कहते हैं चार ऑप्शन है आपके पास नंबर 1 पे भाषा एवं उसके रूपों को दूसरे पर है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को तीसरे पर है रंग को और चौथी पर है शब्दों को तो इसका सही उत्तर होगा भाषा के सबसे छोटी ध्वनि को अब सर कहते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को नंबर 1 नंबर 2 भाषा के सबसे छोटी ध्वनि को नंबर 3 तो इसका अगर सही उत्तर देखा जाए स्तर किसे कहते हैं तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को ठीक है इसका उत्तर होगा सही अगर तीसरे पर व्यंजन कहते हैं तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है
एक है विदेशी वर्णों के, दूसरा है स्वरों से सहायता वाले, स्वरों से सहायता जाने वाले वर्णों को, और तीसरे पर है स्वतंत्र रूप से बाल जाने वाले वर्णों को, चौथे में इनमें तो इनमें क्या होगा, इसका उत्तर स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को, इसका उत्तर होगा ये। अगर संयुक्त व्यंजन के कितने प्रकार है अगर ऐसे पूछा जाए, जिसमें अगर आपके सामने कुछ ऑप्शन वगैरह रख दिया जाए, जैसे कि एक है, दो है, तीन है, चार है, तो आपको एकदम सही तरीके से लिखना है चार है। आप पूछे जा रहे हैं कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, समझ कर लिखिए। देखो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है अगर आपको पूछा जाए, तो आपको बस लिखना है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसको स्वर कहलाता है। जैसे कि आ हस्से दीर्घ हस्से दीर्घ, ऐसे करके आप लिख सकते हो। व्यंजन के बारे में अगर हम कैसे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है जिनको व्यंजन कहलाते हैं। तो इसलिए क्या है, व्यंजन एक साथ अकेला तो बोल नहीं सकता, तो व्यंजन के उच्चारण करने में स्वर की सहायता लगती है। तो का खा गा गा इन सभी को बुलाया था। तो हो गया। अब अब और एक प्रश्न है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है। उदाहरण से देखिए, देखो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है अगर बोला जाए, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता মানে যেই বর্ণটা বা যে স্বরটা উচ্চারণ করার সময় ধরো কম সময় লাগে, তাকে বলা হচ্ছে তোমার বলতে পারো रसस्वर। तो अगर रसस्वर के बारे में हम देखें तो आ हसी हसूरी ऐसे। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दो गुना समय लगता है, जिनको हम दीर्घ स्वर कह सकते हैं। दीर्घ स्वर से अगर हम बोले तो दीर्घ से आ दीर्घ दीर्घ ये ओ, तो इस तरीके का होगा जो होगा दीर्घ स्वर। ठीक है। अब आपके सामने है निम्नलिखित स्तरों से बाली मात्रा उसके रूपों, तो उसके मात्रा और इसके प्रयोग केवल तीन शब्द। देखो हसीकार से तीन शब्द अगर हम को बोलना है तो होगा किताब दिमाग दिशा। एकार से पेड़ केला मेला। এবার হ্যারিকার সেটটা कृपा। तो इस तरीके से अगर एकार से हो रहा है तो पेड़ होगा, केला होगा, मेला होगा। अगर रीकार से देखा जाए तो रीकार से कृपा होगा, मृग होगा, गृह होगा। अगर ओकार से देखा जाए, ओकार के देखो मात्रा करना जरूरी हो जाता है, मात्रा को अच्छी तरह से जानना होगा। तो पहले मात्रा को करना पड़ेगा, उसके बाद शब्द करो। तो ओकार के बाद आपको लिखना है शोर मोर गोल। अब उकार से होगा क्या 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 होगा, कुछ होगा, दुकान होगा, गुलाब हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको करना है। तो उसके बाद अगर हम थोड़ा देखें, उकार तो बोल दिया, कुछ दुकान गुलाब ऐसा तो होगा ही होगा। अब जो है सबसे बड़ी बात, निम्नलिखित शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। और इस जो शब्द है इन शब्दों को आपको अलग अलग करके लिखना है, एक साथ आप डेफिनेटली लिख नहीं पाओगे। गुलाब गा हसू ला आ बा, नहीं ना आ ई दीर्घ अनुस्वार चंद्र बिंदु। अब विद्यालय वा ई द या आ ला आ या आ, विद्यालय। अब होगा विद्यालय तो हो गया भाई, बा ई द या आ ला आ या आ, इस तरीके का विद्यालय होगा। कंप्यूटर की तरफ देखें, कंप्यूटर का आ चंद्रबिंदु पा या उ टा आ रा आ, कंप्यूटर। अब मित्रता की तरफ देखें तो मा ई ता रा ता। तो अगर देखा जाए तो मित्रता तो मा ई ता रा आता आ होगा, इस तरीके का मित्रता हो जाएगा। आप क्रिकेट की तरफ देखें, तो क्रिकेट की तरफ देखा जाए तो क्रिकेट तो
किस तरीके का होगा, का होगा, रा होगा, ई होगा, का होगा, ए होगा, दा होगा, टा होगा, आ होगा। तो क्रिकेट इस तरीके का करना पड़ेगा। गेंद को करवाया जाए वर्ण विच्छेद तो होगा गा, ए, चंद्रबिंदु, दा, आ। इस तरीके का गेंद को करा जाए। अब जो सवाल है, खमतनस्स तरफला वगजया तलवसरफला का प्रयोग करके दो दो शब्द देखो। ये जो चार है हमने बोला अभी, खमतनस्स तरफला वगजया तलवसरफला, ये चार है संयुक्त, ये चार है क्या है, चार है संयुक्त वर्ण, जिनसे हमको दो दो करके शब्द करना है। जैसे खियों की तरफ देखें तो कक्षा होगा, रक्षा होगा। तरफलों की तरफ हम देखें तो छात्र होगा, छात्र होगा, पात्र होगा। बोले तो यहाँ से अगर देखें तो ज्ञान होगा, विज्ञान होगा। तलवसर से अगर देखें तो आश्रम होगा, विश्राम होगा। तो इस तरीके का होगा। ठीक है। एवं उसके बाद जो निम्नलिखित शब्दों में आवश्यकता मूलक रॉ का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा देखो। র এর প্রয়োগ করো। নরমালি কিছু শব্দ দেওয়া আছে তোমার সামনে, সেই শব্দগুলোকে, तो सेক্ষেত্রে এটা কথা বলি। जैसे कि कम, कम को हम लिख सकते हैं कर्म, चंद को लिख सकते हैं चंद्र, सग को लिख सकते हैं सर्गा, क्रिया को लिख सकते हैं क्रिया, क्रिकेट को क्रिकेट, बग का वर्ग। तो इस तरीके का हम रॉ का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है अनुस्वार का प्रयोग करके शब्द लिखिए। गंगा, रंग, मंदिर, कंगन, सुवहन, चप, वहन, छपा, चपा। तो इस तरीके का कुछ अनुस्वार, चंपा, चंपा सॉरी, चंदन, चंपा सॉरी, इस तरीके का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो होगा अनुस्वार का प्रयोग करके शब्द हो जाएगा। अगर आम नासिक का प्रयोग करके कुछ शब्दों के बारे में देखें तो इसका उसमें होगा कांच होगा, गांव होगा, सांप होगा, पांच होगा, चांद होगा, माँ माँ होगा, मान होगा, मान। तो इस तरीके का कुछ शब्दों का प्रयोग हमारे सामने आएगा। तो ये सब कुछ हो गया आज के लिए। उल्टा मांद, देखो बोलते हैं पांच মাস, যে মাসটা যে আমরা যেটা বাংলায় ইংলিশে যেটা মান্থ বলা হয় না, মান্থ। তো বাংলায় ধরো মাস, তো মান্থ কে इसको बोल सकते हैं। এরপরে এইগুলো আমরা যেটা বলছিলাম এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, এইগুলো জুড়ে ধরো কিছু শব্দ গঠন, এগুলো যোগ করে ধরো কিছু শব্দ গঠন, ধরো পরীক্ষায় বাই চান্স চলে এলো, তখন সেক্ষেত্রে যদি এগুলো তোমরা করতে পারো, বা সংযুক্ত ব্যঞ্জন গুলো কি কি সেটা যেন করতে পারো, বা বর্ণ বিচ্ছেদ দিল বাই চান্স, বর্ণ বিচ্ছেদ যেন তোমরা করতে পারো যাতে কোনো রকম কোনো ডিস্টার্ব না হয়, এগুলো তোমাকে দেখতে বলছি। তো বর্ণ বিচ্ছেদ ওগুলো একটা গেল। তো মোটামুটি এই অধ্যায়টায় এইটুকু অংশই আছে। তো আহ, এই অধ্যায়ে এর থেকে বেশি কিছু নেই। ঠিক আছে। তো আর সামনের অধ্যায়ের কথা যদি বলি, সামনের অধ্যায়টা আমি জাস্ট একটু জিস্ট বলছি। মানে আগের যে অধ্যায়টা, মানে আগের দিন যেদিন তুমি থাকোনি, যে অধ্যায়ের নাম ছিল ভাষা, বলি, লিপি আর ব্যাকরণ, ল্যাঙ্গুয়েজ, ডায়ালিয়েক্ট, স্ক্রিপ্ট এন্ড গ্রামার। আমি জাস্ট শর্টে যে বিষয়গুলো বলছি। भाषा की, जिस स्वाधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। যেই সাধনের দ্বারা মানুষ মানুষ নিজের ভাবের আদান প্রদান করে থাকে তাকেই ভাষা বলা হয়। হিন্দিতে বলা হচ্ছে भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। ভাষার দুটো রূপ আছে, সেটা হচ্ছে একটা মৌখিক, দু নম্বর হচ্ছে লিখিত। হলো। अब उसके बाद बोला जा रहा है, अपने मन के भावों को जब व्यक्ति बोलकर व्यक्त करता है तो ভাষা का মৌখিক রূপ होता है। এবার যখন বলছে কি, এবার নিজের মনের ভাবটা একটা ব্যক্তি বলে প্রকাশ করে, তখন তাকে কিন্তু ভাষার মৌখিক রূপ বলা হয়। अपने मन के भावों को जब व्यक्ति लिखकर व्यक्त करता है तो ভাষা का लिखित रूप होता है। এবার যখন দেখো মনের ভাবটা যখন কোনো একজন ব্যক্তি লিখিত প্রকাশ করা হয়, লিখিত রূপে প্রকাশ করে, তখন তাকে লিখিত রূপ বলে। এটা গেল একটা বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। अब है सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। সীমিত, সীমিত ক্ষেত্র মানে কিছু পার্টিকুলার প্লেস, সীমিত क्षेत्र में
बोले जाने वाले भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। মানে কিছু পার্টিকুলার প্লেসে বা কিছু নির্দিষ্ট স্থানে বলা যে সমস্ত ভাষা, সেই সমস্ত ভাষার রূপগুলোকে বলি বলা হয়। বলি হিন্দিতে vocalized বলি, যেটাকে ইংলিশে বলে ডায়ালিয়েক্ট বা বাংলায় বলা হয় উপভাষা। ঠিক আছে, এটা গেল। এছাড়া যেটা আমাদের জানতে হচ্ছে এখানে, लैंग्वेज तो আমরা জানলাম, ভাষা মানে लैंग्वेज, मौखिक लिखित। अब किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। মানে যে কোনো ভাষার লেখনির যে একটা বিধি আছে, তো किसी भी भाषा के लिखने की विधि को লিপি कहते हैं। হ্যাঁ, যে কোনো ভাষার লেখনির যে একটা বিধি, সেই বিধিটাকেই লিপি বলা হয়, বা বলি ওটাকে স্ক্রিপ্ট। স্ক্রিপ্ট বলে, ওকে। সো লিপি গেল এটা। तो এছাড়া যেটা আরো জানতে হয়, जो शास्त्र में वर्णों, शब्दों और वाक्य के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है, वो व्याकरण कहलाता है। यानी कि वो আমাদের বর্ণ, শব্দ, বাক্যের যে শুদ্ধ প্রয়োগ, এই সম্পর্কে আমাদের ধারণা বা জানকারি, অর্থাৎ ধারণা দেয়, তাকে ব্যাকরণ বলে। তো जिन शास्त्र जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्य के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देते हैं, उसे व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण बोले दिलाम। अब व्याकरण की तीन भागों में बांटा गया है, মানে ব্যাকরণকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে বর্ণ বিচার, ২ নম্বর হচ্ছে শব্দ বিচার, ৩ নম্বর হচ্ছে বাক্য বিচার। तो এইভাবে বিষয়টা করা হয়েছে। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज अगले दिन, जो पूर्व दिन हुआ था शुक्रवार को, मैंने इसको बोला था, जो इसके थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस बोला था। तो इसमें इतना कठिन कुछ है नहीं वैसे। लिपि में आपको जो एक्स्ट्रा जो है, वो जैसे कि हिंदी का जो लिपि होता है उसको देवनागरी बोलते हैं, अंग्रेजी का रोमन है, पंजाबी का गुरमुखी है, उर्दू का फारसी है, अरबी का फारसी है। इसको याद रखना है, अगर वीडियो देखोगे तो याद रह जाएगा। देखो वर्ण विचार क्या है, इसके अंतर्गत वर्णों पर विचार किया जाता है। वर्णों पर विचार किया जाता है, जैसे कि आ, हसी, दीर्घी, का, खा, ये सब कुछ वर्ण होता है, तो इसको वर्ण विचार कहते हैं। শব্দ বিচার, इसके अंतर्गत শব্দকে বিচার কিয়া जाता है। শব্দ বিচার করা হয় যেরকম ভাবে, ধরো শব্দ সম্পর্কে একটা বিচার করা হলো, সড়ক, বিদ্যার্থী, ঘর, এগুলো শব্দ। এই শব্দগুলো কিরকম তার সম্বন্ধে বিচার করা হচ্ছে। এর বাক্য বিচারটা কি, इसके अंतर्गत वाक्य पे विचार, ধরো না এর অন্তর্গত বাক্য সম্বন্ধে বিচার করা হচ্ছে, বাক্যের বিচার করা হচ্ছে। तो वाक्य বিচারটা কি করা হচ্ছে, বাক্য দেওয়া হচ্ছে, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी के भारतीय राष्ट्रपिता रूपे जाना है, এটা একটা গেল। अब बोली में जो सबसे बड़ी बात है, भारत में निम्नलिखित 22 भाषा प्रचलित है। ভারতে নিম্নলিখিত 22টি ভাষা প্রচলন আছে। সেগুলো কি কি? নাম্বার 1 হিন্দি, নাম্বার 2 সংস্কৃত, নাম্বার 3 উর্দু, নাম্বার 4 নেপালি, নাম্বার 5 পাঞ্জাবি, নাম্বার 6 বাংলা, নাম্বার 7 मैथिली, নাম্বার 8 সিন্ধি, নাম্বার 9 তামিল, নাম্বার 10 তেলুগু, নাম্বার 11 কন্নড়, নাম্বার 12 উড়িয়া, নাম্বার 13 असमिया, number 14 Boro, number 15 Dogri, number 16 Kashmiri, number 17 Malayalam, number 18 Marathi, number 19 Santali, number 20 Manipuri, number 21 Gujarati, number 22 Konkani। তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে বলি বা বাংলায় উপভাষা, এই 22টা সংবিধানে রয়েছে। আর जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहलाता है। মানে যেই সাধনের দ্বারা মানুষেরা নিজেদের বিচারের আদান প্রদান করে থাকে পারস্পরিক, তাকে ভাষা বলা হয়। भाषा के दो भाग करा হচ্ছে, भाषा के ये आदान प्रदान दो प्रकार के होता है, मौखिक और लिखित। मौखिक की बोल रहा, जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, যখন একটা ব্যক্তি নিজের মনের ভাবটাকে বলে ব্যক্ত করে তখন তাকে মৌখিক বলে। আর जब व्यक्ति अपने मन के भाव को लिखकर व्यक्त करता है, तब उस भाषा को लिखित रूप में कहता है। बस এই ভাষা, বলি, লিপি আর ব্যাকরণ, ল্যাঙ্গুয়েজ, ডায়ালিক, স্ক্রিপ্ট এন্ড গ্রামার, এছাড়া আমি আগের দিনে আর কিছুই বলিনি। এই বিষয়টাকে ডিসকাস করেছি আমি আগের দিনে। এছাড়া ছোটখাটো যা করেছিল প্রিয়াঙ্কা, সেগুলো নিয়ে আমি ডিসকাস করেছিলাম, বাক্য গঠন। তো এর বাইরে আমি কিছু করি।
আপাতত এইগুলোই। নেক্সট দিনে আমি আবার নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব। এটা বর্ণবিচার, ভাষাবলী, ব্যাকরণ, শব্দবিচার, মর্ফোলজি নিয়ে আলোচনা করব নেক্সট মানে শুক্রবার দিনে। মরফোলজি, শব্দবিচার। আজকে যেরকম ভাবে বিচার আলোচনা করলাম, বর্ণবিচার যেটাকে অর্থ বলে ইংলিশে, তার আগের দিনে ভাষা, বলি, লিপি আর ব্যাকরণ। ভাষাকে তো ল্যাঙ্গুয়েজ বলে, বলিকে ডায়ালেক্ট বলে, লিপিকে স্ক্রিপ্ট বলে, ব্যাকরণকে তো গ্রামার বলে। এটা নিয়ে যেমন আলোচনা করেছিলাম। তো নেক্সট ফ্রাইডে, সো তখন আমি ফ্রাইডেতে আমি শব্দবিচার নিয়ে আলোচনা করব, শুনবে। এরপর বাক্য গঠন করতে গিয়ে বা যে ধরো দেখো আগে আগে যেটা কি হয়েছিল ব্যাপারটা, বা এতে কি হয়েছিল, আমি লাস্ট যে শব্দ তোমাকে যখন বলেছিলাম সেই স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ যে শব্দগুলো, ওগুলোকেই বলেছিলাম, আলোচনা করেছিলাম। এবার ওই স্বরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ দিয়ে যারা বিভিন্ন রকম শব্দ হয়েছে, সেই শব্দগুলো গঠন করে যে সমস্ত বাক্য গঠন তোমরা করেছো, আহ, সেগুলো নিয়ে ডিসকাস হয়েছে। ব্যঞ্জন বর্ণ নিয়ে লাস্ট মোমেন্টে হয়েছে, ব্যঞ্জন বর্ণ যে শব্দ গঠন করে। এবার তারপরে ব্যঞ্জন বর্ণ যে ফিনিশ হয়েছে সংযুক্ত ব্যঞ্জন দিয়ে, সংযুক্ত ব্যঞ্জন দিয়ে হয়েছে। তো সংযুক্ত ব্যঞ্জন দিয়ে করতে গিয়ে যদি কখনো কোনো ডিফিকাল্ট হয় বা কোনো সমস্যা হয়, কিন্তু তখন আমাকে বলো যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন দিয়ে করতে গিয়ে স্যার বাক্য গঠনের সমস্যা হচ্ছে, তখন তোমাকে আমি পার্সোনালি ওটা আমি হেল্প করবো। ঠিক আছে? ওটা তুমি নিজেকে একটু করতে হবে। ওটা করার পর তুমি আমাকে বলবে যে স্যার আমার অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো করুক। ওকে, মঙ্গলবার তুমি ফোন করো, নো প্রবলেম। আমি তো শুক্রবার দিন। ওকে ওকে ওকে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, নো প্রবলেম নো প্রবলেম। ओके। हाँ हाँ हाँ, गुड नाइट। तो इस तरीके का भाई हमारा तो हिंदी का अध्ययन खत्म हो गया। तो वेरी गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।